What are some of the most common mental health challenges? Stress है, anxiety है. So how can we sort of like categorize या क्या major difference है? Anxiety is again something you are not okay with your own self, trembling, you're shaking. गुस्सा आ रहा है, mood swings हो रहे हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा यार इस बात पे मैं गुस्सा कैसे कर सकता हूँ कि ऐसा कैसे हो गया. Insta and social media के ज़माने में the attention span has decreased a lot. So self control is important. Phone सबके पास है, notification सबको आ रही है. But at the end, losing what? You're losing your mental wellness, you're losing your work, efficiency, productivity. And especially recent times में बहुत debate भी चल रहा है. 72 hours का work week होना चाहिए या so and so person said कि even Sundays भी working होना चाहिए. I regret I'm not able to make you work on Sundays. I want to work 70 hours a week. ये Saturday Sunday का is not a Indian thing. So, see, of course, balance is important, right? You cannot work 7 days in a week. Hello and welcome everyone to POV Unpopular. In a world where stress, anxiety and depression has become the new normal, talking about mental health is even more crucial than ever. As someone who herself has navigated some mental health issues and challenges and come out of it, I feel really passionate about this topic. And so, for today's podcast, the topic is mental health and wellness, and our guest, Mrs. Divya Pandey. She is a psychologist, a relationship expert and counselor, a therapist, and also a parenting expert and counselor. So, in today's podcast, we are going to talk in depth about stress, anxiety, and all the other issues like burnout, and how to deal with them, how to be in a better mental space, how to have a better relationship with your own self, and perhaps how to wake up happier. So I personally enjoyed a lot having this conversation with her. I resonated a lot with what we discussed today, and I hope that we'll be able to put across the same for you as well. So enjoy. So hello, hi Divya, welcome to the show. कैसे हो आप? Thank you so much. मैं बहुत अच्छी हूँ. I hope आप भी अच्छे. Yes. So for today's podcast, जो हमारा basic agenda है, that's mental wellness in today's times. But before beginning the podcast, आपका एक short introduction. Since how long are you in this field? You are a psychologist, a therapist, and so much more. So we'd like to hear from you only a little bit about you. Okay, so as you all know me कि I'm psychologist, I'm Divya Pandey, and so मुझे इस फील्ड में 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं. Okay. And मैं यहीं यूपी से ही हूँ. Okay. And I have done my studies from Bangalore. Okay. And my family is the one who has supported me for this career. क्योंकि when I took this psychology, so people were not too much motivating and होता है कि इस फील्ड में क्यों जाना है, इसमें कुछ स्कोप नहीं है, कुछ नहीं है. So Correct. my It's not the normal engineering. exactly engineering or doctor MBBS. Why do you want to go for it? इसका क्या स्कोप है? So back then इसका इतना कोई स्कोप था नहीं. People were not aware about this psychology. Psychology क्या होती है और mental wellness क्या है? So people used to think कि क्या ही कर रही है, क्यों करे, इसका कुछ आगे होना तो है नहीं. But again, family support. My family, sister, I was there with her. So she was a constant support कि उसने मेरे को बोला कि नहीं नहीं तुम करती रहो, कोई दिक्कत नहीं है. So that started कि हाँ मुझे करना है. And of course I had a zeal कि नहीं मुझे मालूम है कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है. When you see people suffering and they do not understand कि एक वो label कर देते हैं कि you're not okay, that means you have some mental disorder or illness. So And it becomes like a taboo or something. exactly that time it was a taboo, if you are going to a psychiatrist even. So वो एक taboo था कि आप बता नहीं पा रहे हैं लोगों को, you are ashamed of कि आप अगर psychiatrist के पास visit करके आए हैं तो सिंपल है कि यानी कि इसका तो कुछ है प्रॉब्लम, not fit for the society. तो वैसा था, but yes, now people have started understanding and And accepting it. yeah, they have better awareness, they are now vigilant about it. Correct. So Wow. Okay. That's great. So, beginning the podcast, I think my first question would be: what are some of the most common mental health challenges
that you see or that you encounter in today's times? ओके, सो बेसिकली सबसे पहले तो स्ट्रेस आता है। Correct. स्ट्रेस है, एंजाइटी है, एंड एक बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को कि वो उसको कंफ्यूज कर जाते हैं डिप्रेशन से। Okay. सो इफ मैंने बड़ा ऑन एंड ऑफ सुना है, अपने ही क्लाइंट से ही सुना है या बाकी चलते फिरते लोगों से सुना है कि आई एम इनटू डिप्रेशन, और बट देयर इज अ डिफरेंस, राइट? सो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको अब उस टाइम, क्योंकि सेशन नहीं है तो वो अलग बात है, बट व्हेन दे आर इन सेशन, सो इट बिकम्स ईजी फॉर मी कि उनको एक्सप्लेन करना कि सी depression is different and having stress or anxiety is different. We need to figure out the symptoms. What are they dealing with it? So current scenario में सबसे ज़्यादा जो एक मैंने देखा हुआ है, working और non-working, stress, anxiety, comparison बहुत है लोगों में, self care नहीं है, है ना? So this is something that they challenge every day. They see their self कि हाँ ये problem हो रही है। Okay. So आपने बोला it is stress and anxiety is not depression. So how can we sort of like categorize या क्या major difference है? Okay, so there are certain symptoms of depression and anxiety leads to depression. Of course, आप अगर उसको ध्यान नहीं रख रहे then it आगे बढ़ती है, aggravate होती है. So if you are not okay or if you're not feeling well, you don't want to talk about, you want to isolate yourself, आपको कॉम करने का भी मन नहीं हो रहा, खाना खाने का मन नहीं हो रहा, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा. So there are certain things that happens in depression, you're just keeping yourself isolated. कोई भी खुद की भी अपनी चीज़ों को करना छोड़ दिया है और ये prolonged है, so it means you are dealing with depression. And anxiety is again something you're not okay with your own self, you're not focused, you have palpitations, you have at times numbness or ball syndrome हो जाएगा, where either you are constipated or either आपको loose motions हो रहा है, diarrhea हो जाएगा. So gut health. Yeah, it impacts your gut health even. Or you're trembling, you're shaking, गुस्सा आ रहा है, mood swings हो रहे हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा यार इस बात पे मैं गुस्सा कैसे कर सकता हूँ कि ऐसा कैसे हो गया. So these are certain symptoms of anxiety. So basically your emotions are a little out of control. Exactly, they are dysregulated. So talking about in today's times, आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है. I think it becomes like hardly हम I think max to max आधे घंटे भी अपने फ़ोन से दूर नहीं रह पाते हैं. Correct. So what is the impact of social media on mental wellness? Because it has its pros, but then it has its cons. Right. So we can discuss that and also how to sort of like maintain a healthy relationship with social media. राइट, सी सोशल मीडिया का ना इम्पैक्ट हर जगह देखा गया, हर एज ग्रुप पे देखा गया कि आप अगर देख रहे हो कि लोग पहले काम पे ज़्यादा ध्यान देते थे, अभी क्या हो गया, दे आर मोर इनटू फोन. इट कुड बी एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, बीट इंस्टा, बीट लिंक्डइन, बीट एनीथिंग. सो अभी क्या हो गया, लोगों को थोड़ा सा जहाँ से बोर होते हैं ना, चलो ये कर लेते हैं टू हैव अ बेटर थॉट. और बट अगेन इट इज़ एन एस्केपिज्म. हमने ना हेल्दी हैबिट पे फोकस करना बंद कर दिया है कि अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन कि इफ़ यू आर नॉट do not want to work, you go out, talk to your friend or talk to your someone whom you love or do something that makes you happy. Maybe play a game. Exactly. पहले इनिशियल डेज में जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोग ये करते थे, बट आज के टाइम में क्या है, इट्स अ वेरी इजी हैंडसेट कि आपका तुरंत आपको पता है कि बाकी सब कोई अपनी लाइफ में बिजी है. पहले लोग इतने बिजी भी नहीं थे, उनको पता है दिस इज़ द ओनली वे कि लोग से मिलना, बात करना इज़ इम्पॉर्टेंट. तो अपना एक उनका फ्री टाइम भी होता था, एंड इन अ वे वी डू नॉट रियलाइज कि हाउ इट वर्कड, व्हाट इट वर्कड, एंड उसका जो इम्पैक्ट था वो एक मैजिक था. तो लोग पहले इजी गोइंग होते थे. आज के टाइम में क्या पता है, सब बिजी, आप जा भी रहे हो अगर बात करने, दूसरा फोन पे, तो यू फील कि अरे छोड़ो वो बिजी है. So एक दूसरा तो छोड़ दो, आप घर में बैठे हो और 4 लोग हैं तो चारों फोन. या अभी पहले रूल होता था कि नहीं, अभी क्या है, सब साथ बैठ के खाना खाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. अभी क्या है ना, सब बैठे भी, एज यू सेड कि 4 लोग बैठे भी है ना, तो भी ऐसा हो रहा होगा कि अपने अपने फोन पे. तो सब कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे एंगेज ही है, दो इट इज़ वर्किंग प्लेटफॉर्म, उस पर वो अपना काम ही कर रहे हैं. बच्चों का है तो वो कुछ ना कुछ अपना उसमें गेम्स खेल रहे होंगे, बाकी कोई और अडल्ट हो सकता है इंस्टा देख रहे हो, फेसबुक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो. सो इट इज़ नाउ उसने इम्पैक्ट कर दिया आपकी मेंटल हेल्थ को, क्योंकि आप इतना सारी चीज़ें देखते हैं. और इंस्टा पे मैं आजकल देखती हूँ ना कि बड़ी ऐसी रील्स आती है ना, जैसा आप कुछ सोचते हो उससे कनेक्टेड वो, क्योंकि वो आपके
सर्च हिस्ट्री से उठाता है। सो अब वो कह रहे हैं यार ये इमोशनल वीडियोस, और क्योंकि कई बार ना इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती है, तो उससे हो गया है क्योंकि उनके स्टेट ऑफ माइंड में उनके करंट इमोशन हुआ एंड देन दे आर लाइक हाँ ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। तो वेदर विदाउट हैविंग एनी कम्युनिकेशन व्हाट दे डू इज स्टार्ट बिलीविंग ऑन दैट particular video. Yeah, People have stopped reading books now. Exactly. They just open Insta, YouTube and they learn from it. हाँ, एंड इसीलिए ना सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा जगह इम्पैक्ट कर रहा है माइंडसेट को कि नहीं मैंने तो रील पे देखा था, मैंने तो वीडियो में देखा था, बट उसका कंटेंट कितना रेलेवेंट है, कहाँ से उठाई है वो इन्फॉर्मेशन कि इट इज़ अबाउट द एक्सपीरियंस, इट इज़ अबाउट सम कॉन्टेक्स्ट और इट इज़ अबाउट समथिंग एल्स दैट यू हैव सीन। तो अब क्या होता है, आपने हर चीज़ जो देखी वो मान ली और उसके बाद उसको इम्प्लाई करने लग जाते हो, बट वो इम्प्लाई जब कर रहे हो ना उसका इम्पैक्ट और गलत आ रहा है। Correct. So when you read something, when you discuss something, it has a better outcome. But Insta और इन सब की वीडियो से आप जो देख के आगे बढ़ रहे हो वो इसके इम्पैक्ट थोड़े से लगा जाता है। So I feel also Insta and social media के ज़माने में the attention span has decreased a lot. हाँ हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि क्या हो गया ना, आप बच्चों को जैसे आप देखते होगे या हम ही लोग को देखते होगे, जैसे पहले क्या आता है जब मूवीज़ चल रही होती थी या हम हॉल में जाते हैं जब मूवी देखने, तो क्या होता है कि वो एड्स आता है, तो हमें लगता है यार ये ख़त्म करूँ ना, एक ऐड आया, दो ऐड आया, ख़त्म करो। तो बट क्योंकि वो हॉल है तो वी कैन नॉट स्किप द वीडियो, सो वो हमें देखना ही पड़ेगा। बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या रहता है, वो रील्स रहती है, ये शॉर्ट्स रहते हैं, आपको अपने मनपसंद का नहीं लगा, आपने तुरंत स्क्रॉल कर दिया, नेक्स्ट नहीं लगा, स्क्रॉल कर दिया, स्क्रॉल करते गए। तो वो स्क्रॉलिंग से क्या हो रहा है ना, आपको फोकस पे तो कम ही हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यू हैव एन ऑप्शन, बट व्हेन यू डोंट हैव एन ऑप्शन, जैसे मैंने बताया मूवी हॉल में हम जब जाते हैं तो ऑप्शन नहीं है ना, देखना ही पड़ेगा। So, given all of this, हम कैसे, how are we supposed to, have a healthy relationship with social media? Because phone सबके पास है, notification सबको आ रही है, तो how are we supposed to, maintain that distance? सो सेल्फ कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट, कि ऐसा नहीं है कि अब आप लेटने गए और आपको कोई नोटिफिकेशन आया तो आप क्या करते हैं, तुरंत उठ के देख लेते हैं। पेशेंस कम हो गए हैं लोगों में, इनफैक्ट बच्चों में इसकी वजह से पेशेंस बहुत कम हो रहा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड मेंटेन सेल्फ कंट्रोल, कि आपको पता है कि प्रायोरिटी क्या है इस टाइम, राइट? आप पूरे टाइम, पूरा दिन निकाल सकते हो सर्फिंग में, बट एट दी एंड लूजिंग वॉट, यू आर लूजिंग योर मेंटल वेलनेस, यू आर लूजिंग योर वर्क एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी। सो दैट इज़ वाई सेल्फ कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट। यू शुड नो कि मुझे कितना टाइम इसको देना है, अलॉट सम टाइम, कि चलो अभी फ्री टाइम है, आई कैन गिव 30 मिनट्स मैक्सिमम, क्योंकि बच्चे ना मैं देखती हूँ 3-3 घंटे 4-4 घंटे जा रहे हैं। दैट वे एडल्ट्स भी ऐसे ही रात में जब सोने जाते हैं, ऑफकोर्स दिन में बिजी है पर रात में उनको टाइम मिलता है, अब जब सोने गए तो कब वो स्क्रॉलिंग में टाइम निकल जाता है एंड नेक्स्ट डे उनका उस पर अफेक्ट करता है, क्योंकि यू डिडंट हैव अ गुड स्लीप, यू डिडंट हैड अ गुड थॉट अबाउट नेक्स्ट डे, आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया, टू डू लिस्ट नहीं बनी, टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया। सो सेल्फ कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे आपको पता है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं सर्व नहीं करूँगा या बाकी चीज़ें नहीं देखूँ तो इट वुड बी लाइक अ मिसिंग थिंग। सो आई एम नॉट सेइंग जस्ट कट इट, मेंटेन टाइम, हैव दैट सेल्फ कंट्रोल कि इतना टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ फाइन, इसके आगे हैव माई ओन थिंग्स। So, talking about this only, self-control and everything, what are some of the few things that you can recommend for anyone and everyone to practice in their daily lives so as to be in a better mental space? राइट, सो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट देखनी होती है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप तो सुना होगा कि यार ये नहीं कर पाए, ऐसा नहीं हो पाया, क्यों नहीं कर पाए, टाइम नहीं था। तो टाइम तो 24 घंटे ही है ना, उसमें आपको अच्छी नींद लेनी भी बहुत ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है, अपनी बाकी चीज़ें करना भी ज़रूरी है। सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम, कि देखना है, डाइवर्ट करना है, किसको एलोकेट कर सकते हैं, किसको कितनी चीज़ें मुझे खुद ही करनी है, आज की मेरी टू डू लिस्ट में प्रायोरिटाइज क्या है, किस, तो यू हैव टू मेक टाइम मैनेजमेंट चार्ट, देन उसके बाद टू डू लिस्ट ऑन दैट वे, कि पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, सेकंड क्या है, लीस्ट वाला आप उस हिसाब से करते थे। कई बार ऐसा होता है लीस्ट वाला सबसे पहले कर दिया और इम्पॉर्टेंट जो था वो मिस्ड आउट हो गया। सो यू हैव टू हैव अ लिस्ट अबाउट इट कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या पहले करना है, कितना टाइम कितने किस चीज़ को देना है,
इफ़ यू स्टार्ट डीलिंग विद सच थिंग्स, आपके पास बेटर चांसेस हैं अपनी लाइफ को बेटर वे में डील करने में। कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है, एटलीस्ट यू नो दैट ये मेरा फ्री टाइम है ना, मैं इस टाइम पे ये चीज़ को देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। सो टाइम मैनेज इज समथिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर यू हैव इट। Okay, time management is one thing. Self control, जो हमने already discussed किया, is one thing. Then perhaps some sort of like meditation routine. ऑफ कोर्स, इसी में ही आपका क्या होगा ना, जब आप टाइम मैनेज कर रहे हो, व्हेन आई सेड कि ये मेरा फ्री टाइम है, सो इन माय फ्री टाइम आई जनरली रिकमेंड टू माय क्लाइंट्स इज दैट डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड और इफ़ यू हैव दोज एंशियस थॉट्स, उस मोमेंट पे आप अपना एक रूटीन, जैसे मैंने बोला ना, टाइम मैनेज करना, टू डू लिस्ट बनाना, उसी में आप अपने इस चीज़ को भी ऐड कर सकते हो, यू नो, कि टू हैव अ हेल्दी रूटीन, टू हैव अ बेटर लाइफ, उसके लिए आप मेडिटेशन, एक्सरसाइज, डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, जर्नलिंग। सो ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि व्हेन यू आर नॉट गोइंग थ्रू अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। सो उस टाइम ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है। बट जनरली क्या होता है, लोग अगेन दे से आई डोंट हैव टाइम फॉर मेडिटेशन और एक्सरसाइज, आई एम यू नो कि ऑफिस जाना होता है, निकलना होता है, बट एटलीस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स इन अ डे आप अपने लिए निकाल सकते हो। मॉर्निंग 15 मिनट्स निकाल लिए, रात में 15 मिनट्स निकाल लिए। सो दिस इज़ हाउ यू प्रैक्टिस यू नो माइंडफुलनेस। Correct, correct. That's great. Even, from my personal experience, there was a time when I was feeling very anxious and stuff. So I started this practice of mantra chanting. I have a few mantras of whatever, like of my choice. And I just before bedtime, I like 10 to 15 minutes, I'll just chant those mantras. And it actually makes you very peaceful. राइट। अब आप देखो ना, नोटिस करो, जब आप फोन देखते देखते सो रहे हो या फोन रखा और तब आप सोने जा रहे हो, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और जब आप 15 मिनट सिर्फ अपने आप से आप कर रहे हो, यू नो, इन अ वे आपकी इनहेलिंग एक्सहेलिंग चल ही रही है, सो यू आर इन अ काम एंड कंपोज स्टेट ऑफ माइंड। सो वो आपको एक बेटर स्टेट ऑफ माइंड में रखता है, जहाँ की आप, अगर आप रूटीन लाइफ में उठाओ, आप फोन देखते देखते या किसी से बात करते करते सो गए, बट आपके पास अपना टाइम ही नहीं रहा। यू डिडंट रियलाइज कि कल के काम क्या है, आज मैंने कैसे क्या किया, क्या मैं बेटर कर सकती थी। सो जब आप अपना वो टाइम दे रहे हो, तो यू हैव योर ओन टाइम ऑफ रियलाइजिंग कि यार इसको मैं और इम्प्रोवाइज कर सकती थी, या ये आज मैंने बहुत अच्छा किया है, गुड जॉब, यू नो, यू अप्रिशिएट योर सेल्फ। बट यू व्हेन यू आर ऑक्यूपाइड, यू आर ऑलरेडी डाइवर्टेड टू समथिंग एल्स, so where is the time then? So we talked about stress, anxiety. Now there's this term burnout, which is usually associated with corporate या professionals, and especially recent times में बहुत debate भी चल रहा है कि so and so person said कि 72 hours का work week होना चाहिए, या so and so person said कि even Sundays भी working होने चाहिए, which is in the media all over. So what's your take on that? And how important is mental wellness when it comes to in a professional life? And how to avoid burnouts, and yeah, let's talk about that. Okay, so see, of course, balance is important, right? You cannot work 7 days in a week. You need to have your own life, you need to have rest, right? आप सारे दिन अगर काम ही कर रहे हैं, तो आप रेस्ट कब कर रहे हैं, आपकी अपनी फैमिली लाइफ कहाँ है। तो बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट, यू नो, कि अगर आपने वीकली ऑफ लिया है, इट कुड बी नॉट ओनली संडेज, इट कुड बी, ऑल वी वांट इज अ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस दैट वी से। तो बर्नआउट होता ही तभी है जनरली व्हेन यू डोंट गेट इनफ लीव्स, इनफ टाइम फॉर योर ओन थिंग, बिकॉज आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी लो हो रही है। सी, इनिशियली आई अंडरस्टैंड कि जब आप आते हो, ज्वाइन करते हो, यू नो, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि अरे विद अ ज़ील कि नहीं अब तो कुछ भी हो, यू नो, आई विल वर्क लाइक दिस, डेडिकेशन पूरा रहता है। आप अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाना चाहते हो, अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, तो वहाँ पे ठीक होता है, लोग अपने। बट एक पॉइंट ऐसा आता है ना जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं अब बहुत कर लिया, यू आर गेटिंग टायर्ड नाउ, यू आर नॉट हैविंग दैट मोटिवेशन, बिकॉज उस ड्यूरेशन में आपने उतनी चीज़ें जो करनी चाहिए थी वो नहीं की। आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस थे, दैट वाज वर्क। आपकी अपना टाइम, फैमिली टाइम इज़ वे इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू आर एट पीस फ्रॉम योर वर्क बट यू आर नॉट एट पीस फ्रॉम योर फैमिली और योर ओन सेल्फ, आपकी हेल्थ पे इश्यूज आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ इज़ नॉट फाइन, it will give an impact. So work life balance is important. See, I understand हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, उनकी लाइफ में उनके अपने कमिटमेंट्स हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, बट इन जनरल इफ़ यू सी,
कि आई हैव many clients who have issues with their work life balance. They are like totally dedicated to work, but again not able to give time to family or to self. क्योंकि आपके दिन के 24 घंटे ही तो है ना. आप सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक काम कर रहे हो, देन यू आर ट्रैवलिंग बैक टू होम. घर जाके आपके पास टाइम क्या बचा? आपका अपना टाइम कहाँ है? आप सुबह से लेकर शाम तक तो रात तक काम में थे, गए, और जो सोने जा रहे हो उसमें भी आप पीसफुली नहीं सो पा रहे क्योंकि आपके नेक्स्ट डे कमिटमेंट्स दिमाग में चल रहे हैं. तो जब आप अपना टाइम निकालेंगे ही नहीं तो इश्यूज तो होंगे ही बर्नआउट के. सो व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन सेल्फ, ऑन पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, दैट बिकम्स द बेटर थिंग कि वर्क भी चल रहा है, वो भी बेटर स्टेज पे है, फैमिली भी चल रही है, पर्सनल लाइफ भी. मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ केयर इस सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. क्यों आप अपने कमिटमेंट्स में इतना आगे लगे रहते, नहीं मैंने प्रॉमिस कर दिया, मैंने ये कर दिया, मेरी डेडलाइन है, प्रोजेक्ट का रिलीज है, सो यू आर जस्ट वर्किंग हार्ड फॉर इट. यू आर जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग योर ओन सेल्फ. यू डोंट वांट टू वर्क, यू डोंट वांट टू गो ऑन संडेज और वीकेंड्स ऑफ. इट्स स्टिल यू आर गोइंग इट क्योंकि ये आपके कमिटमेंट्स हैं. सो compromising is something which is creating a burnout in the people. And I also feel ki people are like, why they are doing this is they are running after something or the other. Either it can be money or it can be a position, Yes. power, something like that. So instead, it's better to run after things like peace. Exactly. Yeah. See, आज के टाइम में क्या हो गया ना, कंपैरिजन बहुत हो गया है. अभी क्या हो गया ना, जैसे having a car is not a luxury now. It's a necessity now. If you compare last 20 years back, का पिछले 20 सालों का आप उठाओ, तो लोग के लिए कार होना वॉज अ लग्जरी सेगमेंट. आज के टाइम में कार होना इज अ नेसेसिटी. अब इतना कंपैरिजन है, उसका सीटीसी क्या है, इसका सीटीसी क्या है, उसका बच्चा ये इतना मेडल्स ला रहा है, प्राइजेस ला रहा है, मेरा बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है. तो कंपैरिजन आपका ना हर फील्ड में हो गया, हर एज का में हो, आज एज ग्रुप में हो गया. तो आपको जो भी आप कर रहे हैं उससे पीस तो मिल ही नहीं रहा है. ऑल यू आर बीइंग इनटू कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कि नहीं मुझे इससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. तो आप हर चीज़ अगर जब चाहते हो ना तो पीस तो नहीं आ सकता. सो इंस्टेड व्हाट यू हैव, यू शुड फील अबाउट इट एंड यू शुड बी थैंकफुल अबाउट इट एंड हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि यस दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, दिस इज़ व्हाट आई हैव अचीव्ड. क्योंकि आपने जो अचीव किया है ना, आप उसकी वैल्यू तो रखते ही नहीं हो कभी. यू ऑलवेज हैव दैट थॉट कि उसके पास ये है, in that way, as you said, positions हो गए या CTCs हो गए, उसका ये है, सेम एज ग्रुप है या कुछ भी है, तो अगर उसका उससे ज़्यादा है तो आपको अगेन ये इशू है कि यार उसका क्यों इतना ज़्यादा, what is lacking behind in me. तो आपको जो मिल रहा है उसमें अगेन यू आर नॉट हैप्पी. सो कंपैरिजन. And if you go that ways, there will always be someone who is doing better. Of than you. course, It's of like course. a never-ending race. हाँ, सी आप जितने भी आप जितने भी देखो जो who have worked very good in their life, they're never satisfied in their life because क्योंकि उनको हमेशा रहता है what next, what next, what next. They're never satisfied. And ये एक psychology है, human psychology है. They whatever they have, no, they are never satisfied. They always compare people who are on the top of them, but they never see themselves और जो लोग उनसे नीचे हैं वो क्या उन्होंने अचीव किया हुआ है, उन्होंने कितने स्ट्रगल्स फेस किए हैं. They never see that. All they see is their own failure, their rejections, their mistakes, their wrong decisions. करेक्ट. तो इससे एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी निकल के आती है. सो लाइक द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज. लाइक बिल्कुल डेली लाइफ में यू हैव टू रियली बी थैंकफुल. Of course. क्योंकि लोग ना भूल चुके हैं ग्रैटिट्यूडनेस के बारे में. आता है लोगों को ग्रैटिट्यूडनेस है, थैंकफुलनेस है, बट वो कभी कभार है. इफ वी सी इन डेली लाइफ, डू यू से थैंकफुल की थैंकफुल टू योर ओन सेल्फ? इफ आई मे आस्क यू कि आप ही बता दो, आप दिन में एक बार भी अपने आप को थैंक यू करते हो? नहीं करते हो. रीज़न वही मैं कह रही हूँ ना कि लोग आजकल ना लोगों को थैंक यू कर लेते हैं कि हाँ उन्होंने उनका कोई काम कर दिया, कोई चीज़ अटकी पड़ी थी वो कर दिया. बट व्हेन वी स्टार्ट टू से थैंक यू टू आवर सेल्फ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्योंकि आपकी इन आँखों की वजह से आप चीज़ें देख पा रहे हो, इन हाथों की वजह से ही आप चीज़ें लिख पा रहे हो, कर पा रहे हो, योर ओन बॉडी विच इज़ वर्किंग फाइन. आप उसकी वजह से आज जो आपने प्रोडक्टिविटी करी या एफिशिएंसी अपनी बढ़ाई या आज आपने जो भी रेवेन्यू खुद की चीज़ों से जनरेट किया या कुछ भी, इन दैट केस इफ़ यू आर नॉट वर्किंग बट इफ़ यू आर ए होम मेकर, आपने खाना बनाया ना, आप घर का ध्यान रख रहे हो, अपने बच्चे का ध्यान रख रहे हो, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हो,
तो हम उस चीज़ को ना वैल्यू नहीं करते. So when we start valuing our own self, no, कि नहीं यार, I'm also doing something, that creates an impact. Correct. And I feel people often like they just crave for validation from others, course. but instead start saying thank you to your own self. Right. क्योंकि क्या होता है ना, आपको पता है कि अगर आपने कुछ गलत किया है ना, तो ये जो 4 लोग हैं ना, ये सबसे पहले आ जाएंगे. तो इसकी वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पैक्ट होती है कि ये लोग क्या कहेंगे. पीपल प्लीजिंग दैट वी से, यू नो, कि ये लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये इनको खुशी हो रही है ना, चलो आई विल डू इट. बट आप खुश हैं? नहीं है. आप इसलिए वो डिसीजन ले रहे हैं या वो काम कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इन केस गलत भी होगा. पहला पॉइंट, गलत भी होगा तो भी आपको कहते हैं इन्होंने बोला था. दूसरा होगा, आपको खुद से अपने लिए कोई वो नहीं चाहिए कि मैं खुद से सेल्फ क्रिटिसिज्म करूँ खुद के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लोग अपने आप को क्रिटिसाइज बहुत करते हैं. दे डू नॉट फॉरगिव देयर ओन मिस्टेक्स. आपने कोई भी गलती करी तो लोग बाद में आएंगे, पहले अपने आप को क्रिटिसाइज कर देने लग जाएंगे कि देखो मैंने फिर से ये गलत कर दिया, पिछली बार से भी मैंने नहीं सीखा. सो आप पहले ही क्रिटिसिज्म में रह रहे हो एंड दूसरे आएंगे तो फिर आपको वो और इम्पैक्ट करेगा. सो वो वैलिडेशन वहाँ से आता है कि नहीं यार, अगर कुछ गलत हुआ ना तो एटलीस्ट आई हैव अ यू नो शोल्डर कि जिन पे मैं बोल सकता हूँ कि यार इन्होंने बोला था इसलिए मैंने ये किया. Correct. So not being able to take responsibility Exactly. of your own actions. Right, right, right. So okay. Okay, so this is majorly we discussed the professional life. Now, a little bit talking about the personal life, relationships. Okay. So I feel people who are experiencing toxic relationships या unhealthy relationships of any sort, उनकी mental health की लग जाती है. Right. And I feel it's a major problem in today's times. Right. Because starting from teenagers, college students, or even adults whatsoever, like in whatever stage you are in life, अगर आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, then it will like take a toll on your mental health. So firstly, how can you identify that you are in an unhealthy relationship, a toxic relationship, and if you are in one, then how to move out of it? Right. So communication first is the key. You need to understand कि are you having a good communication? Are you given that space to be your own self? अगर आपको उनके सामने चेंज होना पड़ रहा है, आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ रहा है, you're scared, or someone is being abusive, verbal or physical, or someone is not giving you respect, is not having that trust. So अगर ये सारी चीज़ें हैं, so it is a toxic relationship, that we say red flag relationship. On the contrary, if you are being respected, you are being valued, you are being trusted by someone, you don't have to be like ये वो filtered version लेके आना पड़ेगा. You are being your own self, unfiltered, raw. So that is like where you are given a space to breathe. That is what we say green flag relationship. If you are dealing with such thing जहाँ पे आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, so of course you are in a red flag relationship or a toxic relationship. You have to come out, क्योंकि यूजुअली लोग कई साल तक ऐसा होता है बोल नहीं पाता है, डर की वजह से एडिक्शन भी हो जाता है. दैट दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट. एडिक्शन इज नॉट ओनली अबाउट सब्सटेंस और समथिंग एल्स. एडिक्शन इज अबाउट द पीपल आल्सो, यू गेट हैबिचुएटेड कि आदत है कि अरे यार वो इंसान नहीं है तो अब क्या. सो यू आर लाइक ठीक है, चल रहा है. बट यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ, यू आर नॉट बीइंग लव्ड, you're not being respected, you're not being heard. So that is something that you should make sure that you are being heard, you are being valued, respected. Correct. And I feel also like because आजकल के ज़माने में सब सोशल मीडिया पे किसी ना किसी का फोटो डाल रहे हैं, तो वो एक फोमो वाली फीलिंग आ गई. बट it's completely okay to be single, right? You can just be single instead of being in an unhealthy relationship. Exactly. Yeah. See, toxic relationship से होने से better है ना कि just be yourself. Why people want other person to be loved? Because आप खुद से तो प्यार करते नहीं हो, आप expect करते हो दूसरे से. तो अगर आप अपने आप से प्यार करना शुरू करोगे, there we say practice self care. When you start loving your own self, you don't need a person. Of course, लाइफ में एक पॉइंट आता है जहाँ पे यू नीड अ पार्टनर, यू आर बट फॉर हैविंग सच थिंग कि आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए जाना है कि आपको एक इंसान चाहिए जो आपको पैम्पर कर सके, प्यार कर सके. तो पहले तो ये है कि क्या आप खुद से प्यार करते हैं, क्या आप अपने आप को समझ पा रहे हैं. सो वहाँ पे ओवर एक्सपेक्टेशंस आती है कि मैं तो इस रिलेशनशिप में इसलिए आया या आई
कि you would be the reason of my life or happiness or my peace or my understanding. You would understand me better. First question, do you understand yourself? Do you love yourself? So अगर आप अपने आप से प्यार करोगे, अपनी गलतियों से भी प्यार कर लोगे, ठीक है कोई बात नहीं, गलती कर दी ना, I learn from my mistake. Again make the mistake, but new mistake. ठीक है, so you have to practice self care first. Then it is not important कि you need a person. ज़रूरी नहीं है कि इंसान है तो वही मैं खुश रह सकता हूँ. आपने कितने ऐसे लोग देखे होंगे जो खुश है, सिंगल है, सिंगल पेरेंट है, खुश है क्योंकि दे प्रैक्टिस सेल्फ केयर. दे नीड कंपेनियन, बट यस एकदम से वो अर्जेंसी दिखाने की जरूरत नहीं है ना. टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द पर्सन. That is the thing. And you talked about single parents. So वहाँ से एक पेरेंटिंग भी आ जाता है कि यू नो इन टुडेज टाइम्स सिर्फ ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं ये सिर्फ एडल्ट्स के लिए हैं ऐसा नहीं रह गया है. They are like even children of maybe 10 years, 15 years, they are experiencing mental health issues. Right. So ये कहाँ से आ रहा है and what role does parents play in this scenario? You know? So पेरेंट्स, अब देखिए पहले का अगर मैं एक चीज़ इसमें बताऊंगी, पहले भी इश्यूज होते थे, पेरेंटिंग इश्यूज होते थे, बट आज जैसे मैं देख रही हूँ ना, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे भी है, यू नो 5-6 साल के, 3-4 साल के. क्यों हो रहे? क्योंकि देखिए अब पहले के पेरेंट्स वर्किंग भी नहीं थे, और एक पेरेंट वर्किंग था, आज क्या है दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, या फैमिली न्यूक्लियर नहीं होती थी, जनरली जॉइंट फैमिली होती थी. तो अब एक रीज़न यहाँ आता है कि न्यूक्लियर फैमिली का रोल प्ले, दूसरा आता है पेरेंट्स वर्किंग का. अब पेरेंट्स जब वर्किंग हैं तो ऑफ कोर्स न्यूक्लियर फैमिली में है तो घर में कोई नहीं है, इधर दे आर ऑन मेड्स, और अगर बच्चे बड़े हैं तो वो खुद से अपना देख रहे हैं, मैनेज हो जा रहा है. तो अब बच्चे अपने मन की कर रहे हैं, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जहाँ पे उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, तो वहाँ कोई है नहीं. पेरेंट्स के पास कब टाइम होता है? वीकेंड्स पे टाइम होता है. हाँ, वीकेंड्स में 5 दिन का पूरा तो चिट्ठा उन्हें पता नहीं चलता. बच्चे क्या करते हैं कि कुछ कट शॉर्ट में पूछ लेते हैं, बता देते हैं, और कुछ बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं बताते कि भूल गए या भूल गई, क्या करना आपको. तो क्या होता है ना, बड़ा लीवे मिल चुका है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी. तो जो मर्जी आ रही है वो कर रहे हैं, कंट्रोल जा चुका है, सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल जा चुका है. तो आपने देखा होगा बच्चे बड़े एग्रेसिव हो रहे हैं, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, ज़िद्दी हो रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज हैं. सो इट इज़ बिकॉज कि आप उन्हें वो इनफ टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास वो इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है, आपका इमोशनल सपोर्ट नहीं है. तो व्हेन दे आर वीक टाइम्स, व्हेन दे नीड पेरेंट, वो उस टाइम अकेले हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि आपका अगर कभी मूड ख़राब होगा तो वो वीकेंड पे ही होगा. मूड तो कभी भी ख़राब हो सकता है, आपकी किसी भी चीज़ से आपको कोई चीज़ अफेक्ट कर सकती है. सो इट इज़ अबाउट द इमोशनल अवेलेबिलिटी. दो यू आर वर्किंग बट यू नीड टू टेक आउट टाइम फॉर द चिल्ड्रन, क्योंकि आप जब नहीं है ना तो वो अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं. दे आर नॉट मच अवेयर कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है. अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड, राइट, कि आप बच्चे को कितनी डिसीजन मेकिंग करने दे रहे हैं, कितना उससे बूस्ट कर रहे हैं, कितना उसे सपोर्ट कर रहे हैं. सो दिस इज समथिंग दैट यू एज अ पेरेंट हैव टू टेक केयर कि यू हैव टू गिव टाइम. और ये भी नहीं है टाइम दे रहे हैं, चलो तुम्हारे साथ टाइम दे रहे हैं और अपने फ़ोन पे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं. नो, टाइम मीन्स उनका टाइम मतलब उनका टाइम. यू हैव टू टेक आउट योर ओन टाइम विद देम, स्पेंड टाइम, प्ले गेम्स विद देम. बिल्कुल अनडिस्टर्ब टाइम वो उनके साथ होना चाहिए. सो इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दिस तो वो इम्पैक्ट करता है बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, तो इट हैज़ बेटर थिंग्स. Correct. And even talking about children parenting, and we were talking about unhealthy relationships. So a lot of times, जो marriages होती हैं, if they are unhealthy, it creates a lot of trauma on the children. Because अभी recent में ही you know एक बहुत famous social media पे IIT बाबा जी हुए हैं, and he has been narrating his childhood trauma a lot on social media, that you know he saw some domestic violence, etc., and that's what created a very negative impact on his mind. So what, like, you know, what is the best case scenario? Because in my opinion, agar aisa hai, तो perhaps it's better for the parents to actually separate rather than, you know, being there and having deal with like domestic violence, etc., Right. etc. What's your take on that? See, you would have heard कि he stood by his mother, but his mother refused. Okay, I am not sure. Okay, हाँ, so there's a story where he stood for his mother, but her mother was like नहीं ठीक है. So Okay. generally it happens कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, Hmm. you know, पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन मेनी सिनेरियोज कि
they see the financials, they see other socio things कि कि क्या होगा, कैसे होगा, 4 लोग क्या बातें करेंगे, ये एक बड़ा चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में And हमेशा normally I चलेगा। think ये फीमेल साइड पे ज्यादा ऑफ होता है। कोर्स ऑफ कोर्स कि वो बर्दाश्त इसलिए करती है कि नहीं, एंड क्या होता है ना, उन्हें लग रहा है कि वो बर्दाश्त कर रही है अपने बच्चों के लिए, बट बच्चे उसका ऑपोजिट देख रहे हैं, क्योंकि वो तो एक अनबायस्ड जगह खड़े हो रहे हैं ना, दैट इज अ थर्ड पर्सपेक्टिव सिनेरियो, एंड दे सी दैट कि इट इज नॉट राइट, व्हाट इज बीइंग हैपनिंग विद हर इज नॉट राइट। वो अपनी डर की वजह से शायद स्टैंड नहीं ले रही, बच्चों की वजह से नहीं ले रही, फिनेंशियल्स की वजह से या सोशल थिंग्स की वजह से, सोशल, बट उसका इम्पैक्ट उन पे होता है। एंड जब उनके सामने एक क्लियर एग्जाम्पल नहीं है, एक बेटर एग्जाम्पल नहीं है कि हाउ मैरिज वर्क्स और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मैरिज और बीइंग इनटू रिलेशनशिप, तो वो क्या समझेंगे उस चीज़ से? तो उनको तो यही लगेगा ना, वो देख रहे हैं कि योर मदर इज बीइंग अब्यूज्ड, सो उनको तो लगेगा कि नहीं भाई ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि शादी का मतलब ये होता है, यू आर नॉट सेटिंग गुड एग्जाम्पल्स फॉर द चिल्ड्रन। इफ यू आर सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल, जैसे कि आप आए हो ऑफिस से, मदर इज नॉट वर्किंग, शी इज एट होम एंड यू आर हैविंग अ गुड टाइम, यू आर लाइक कि यू आर अप्रिशिएटिंग योर वाइफ, यू आर हैविंग अ गुड टाइम, फैमिली टाइम, कि चलो लेट्स प्ले नाउ, मम्मा सारे दिन से काम कर रही थी, आओ मम्मा को थोड़ा रेस्ट करते हैं, मम्मा रेस्ट करेगी, हम लोग ये करेंगे, और वेयर यू स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू हर, the meaning changes, right? But when you come from the office and you are like, नहीं, I have done so much, तुमने क्या किया घर पे रह के? बट घर पे रह के कितने काम होते हैं? If you don't value the other person, you're like, आप उसको abuse कर रहे हो, आप इतनी सारी चीज़ें सोच रहे हो, तो उसके बाद से वैसा इम्पैक्ट होगा कि हाँ यही होता होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स पेरेंट्स बच्चे के लिए हमेशा सबसे पहले होते हैं, और वही उनकी रोल मॉडलिंग टेक्निक पे वो काम करते हैं कि ऐसा हो रहा है यानी कि ये सही है, तो वो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि ऐसा है तो भाई ये तो नहीं करना है। और अगर उसका ऑपोजिट वो उन्होंने देखा होता कि यू आर हैविंग अ हैप्पी फैमिली, वीकेंड्स पे हम लोग जा रहे हैं, फैमिली टाइम कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक दूसरे की वैल्यू कर रहे हैं, किसने जो भी काम किया उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बट वो करा दिया गया है। बीइंग अ होम मेकर इज समथिंग, क्या काम है? कोई काम नहीं है, बट एक बार करके देखो कितना डिफिकल्ट है इट इज टू मैनेज फुल हाउस, फुल पीपल, फुल फैमिली। आप सिर्फ एक काम करते हो अपने ऑफिस का, उसमें लगता है कि अरे भाई बहुत काम है, एंड दैट लेडी हैज टू वर्क फॉर एवरीवन, सबके हिसाब से चीज़ें मैनेज करना, सब चीज़ें मैनेज करना। सो व्हेन यू स्टार्ट टू वैल्यू दैट थिंग, वो वहाँ से शुरू होता है। तो बच्चे ना चाइल्ड जो होता है वो रोल मॉडलिंग टेक्निक पे ही काम करते हैं। इफ़ जैसे आपने देखा होगा कि घर पे अगर बोला गया है कि देख रहे हो मंदिर के बाहर हम लोग चप्पलें निकालते हैं, सर ढकते हैं, प्रसाद नहीं फेंकते हैं, तो बच्चों को आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मंदिर के बाहर जाएगा, चप्पल निकालेगा, बो योर हेड, पैर छू के प्रसाद लेके आ जाएगा। इनिशियली 1-2 बार बताया होगा, बट उसके बाद से वो आदत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि फैमिली में देखा है, राइट? सो दे डेवलप ऑन दिस टेक्निक। I was reading somewhere that children they learn more by seeing, not by Yes. hearing. Yes. So no matter what you tell them, What they they only see. learn what they see. आपने एक इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कभी-कभी गुस्से में कुछ लोग को देखा होगा, some people become aggressive, some become more abusive, और कुछ लोग क्या करते हैं, they isolate themselves। तो अपना-अपना तरीका है गुस्सा निकालने का। अब वो तरीका आया कहाँ से? They have seen them from their own family, they have learned that from their own family। फैमिली में जैसे मम्मी-पापा करते होंगे, अब तो वो बच्चे को पता है कि यही तरीका है, ऐसे ही करना होगा। तो क्या-क्या गुस्सा आया, ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। गुस्सा आया तो घर पे अगर अब्यूसिव माहौल है तो उन्होंने भी वही सीख लिया। नेक्स्ट वो भी गुस्से में आके क्या कर रहे हैं, यही चीज़ें बोल रहे हैं। अगर उन्होंने देखा किसी को घर पे ऐसा मारपीट वाला माहौल है, वो भी किसी को मारपीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी हुई है। उनके सामने ये ओके है करना, क्योंकि फैमिली में हो रहा है तो ओके ही होगा। तो ऐसे बच्चे सीखते हैं। Correct. So do you think that in this scenario, अगर किसी का ऐसा है scenario, it's better to actually separate, because even divorce in a society is sort of like looked upon as a taboo, especially Yes. for the females. Yes. So that is perhaps the reason they don't really go for it as often. But do you think it's actually better to do that rather See- than creating this atmosphere? करेक्ट। द थिंग इज कि कम्युनिकेशन, Hmm. क्या आपका कम्युनिकेशन है? Hmm.
क्या आपने उनको ये बात बोली कि सी दिस इज़ नॉट राइट एंड यू शुड बी वर्किंग ऑन इट? और नॉट ओनली, देखो गलतियाँ 2 साइड से होती हैं। तो हो सकता है एक की ज़्यादा हो, एक की कम हो। बट अगर इफ़ यू वांट कि आपकी हैप्पी लाइफ हो, तो वर्क ऑन इट, कम्युनिकेट। और अगर जनरली लोग क्या होता है ना, कम्युनिकेट नहीं करते हैं। दे जस्ट टेक दैट थिंग कि अब बस ख़त्म करना है। सो डिवोर्स इज़ ओके अगर आपने कम्युनिकेशन किया है एंड यू आर गिविंग चांसेस। लोग क्या करते हैं, चांसेस तो देते हैं बट किस बेसिस पे दे रहे हैं चांसेस? एक पैटर्न है, आपने कम्युनिकेट किया है, आपने हर चीज़ बात कर रखी है कि अब ऐसा होगा तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि आई ऑल्सो हैव माई ओन लाइफ। अब कब तक इस चीज़ पे रहोगे? बच्चे को क्या सिखा रहे हो? तो क्या आपने कम्युनिकेट किया? अगर कम्युनिकेट किया, क्या उसके बाद काम हुआ ऐसा? नहीं हुआ, देन ऑफ कोर्स इट इज़ अ बेटर वे कि you should be happy to make others happy. You cannot make any other person happy until unless you are happy inside. आप मास्किंग कर सकते हो, टाइम बिंग के लिए कर सकते हो, बट एट द एंड पीपल विल गेट टू नो एंड ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो बेटर गेट सेपरेटेड। अगर आपने कम्युनिकेशन कर रखा है उसके बाद भी नतीजे आपको वही नल एंड वॉइड वाले हैं, सो इट इज़ बेटर। क्योंकि बच्चे के लिए एक वो ट्रॉमा है कि रिलेशनशिप का उसको गलत मीनिंग समझ में आ रहा है, मैरिज का एक गलत मीनिंग समझ में आ रहा है। सो दैट पर्सन, द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप ये नहीं होता है। एंड ऐसे बच्चों को ना रिलेशनशिप से विश्वास उठ Of जाता है course, पूरी trust लाइफ issue. के लिए। Yeah, they have a lot of trust issues. They have their own personality issues. Yeah. So वो later in their adulthood they find it out कि ये क्यों हो रहा है. So it is about that. Correct. Okay. So moving on, we'll do a fun rapid fire with you. Okay. Okay. So these are just fun questions, and let's see. Okay. So beginning, my first question would be your favorite book. Okay, so it is a book. It's a 5-second rule book. So जिसमें by Mel Robbins. So इसमें इन्होंने basically आपके healthy habits, anxious thoughts, goal settings इन सब के बारे में बताया हुआ है. So मुझे ये book इसलिए अच्छी लगी, reason being कि उसमें सारी चीज़ें ना एक ही जगह दी हुई है. इतना पढ़ के ऐसा हो चुका था कि भाई अब 4 books एक साथ आ रही है ना, इसको क्लब इन है. सो इट्स अ गुड बुक टू रीड. मतलब आपको अपने साइड से ही मोटिवेट कर देता है कि हाँ ये करना है, ऐसे करना है. So in fact, there are many other books which I love to read. But yes, so this is one of my favorite books. So Okay. Okay. Next would be your favorite vacation place. okay, so Yeah, any place that is on your to-do list. You have not been there. I would like to go back again to Switzerland. Okay. So to-do list में Istanbul. Okay. वो मेरा बहुत long time pending है and because I have to do this hot air balloon which is in Istanbul. Yeah. So मुझे बहुत पसंद है कि being a free bird और आप खुले आसमान में नोएडा के पॉल्यूशन को देखते हुए आई फील कि हाँ इट्स अ वेरी Much needed. yeah so that is something which I would like to do. Okay. Your favorite food. I generally like to have dal rice. Yeah. That is my all time favorite comfort rajma rice. food. Yeah. Dal chawal और rajma rice is my thing कि ये मुझे दे दो and I don't want anything else. Your inspiration in life. My sister. Okay. I have seen her like we were in Bangalore all together. So मैंने उसको देखा है कि उसकी लाइफ के स्ट्रगल्स सारी चीज़ें and how upfront she was, what bold personality and that too ever laughing. So I have learned from this and initially I was an introvert. So from my journey from introvert to being extrovert or being extrovert. So that started from her. So I see her as like my role model. Okay, that's nice. A philosophy that you live by or that you really like. I always believed, I don't know what was my age, but I have mentioned that thing in my Facebook profile. Probably in college first year. View life as a continuous learning process. Okay. So I thoroughly believe in this कि कि आप जब तक लाइफ में लर्न नहीं करते रहोगे तब तक आप अपनी ग्रोथ, अपनी प्रोग्रेस से थोड़ा सा पीछे रहोगे. क्योंकि आपको लग गया ना जिस दिन कि ये अब मुझे सब आता है, तो सब नहीं आ सकता बस. तो हमेशा आपको ना लाइफ में लर्न करते रहना ही चाहिए, चाहे वो जो भी हो.
इवन विद स्मॉल चिल्ड्रन कि कैसे उनके में वो बड़ा फॉरगिविंग नेचर होता है उनका, बड़ा बड़े ही प्यारे बच्चे होते हैं कि यार वो उनके साथ आप कुछ कर दो ना, उन्हें डांट दो और वो उनके साथ प्यार से बात करो, फिर नेक्स्ट मोमेंट दे आर लाइक अरे ओके फाइन They don't hold हाँ anything, they yeah. don't hold anything. So with adults it is a problem कि वो they keep on holding, तुमने ऐसे बात कर दिया, बच्चों को they are like आप उनके साथ स्माइल कर दो, ये कर दो, and they are like okay fine. So this is I personally believe कि view life as a continuous learning process. Okay. Okay. If you could be one animal for a day, what would you be? Which animal? I could say a bird would be better. Okay. Animals में मतलब I don't know much, but yes, animals like I said, albatross. Bird does. Which animal? Albatross. Oh. So I just would fly like that. Want to be a free bird. Of course, I'm a free bird only, but yes. कि अपना एक एरियल व्यू रखो अपना हर जगह से जहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा है, like that. Correct. Okay. And the last question is, if you could have one superpower for a day, what would it be? One superpower. See, मेरे को साइकोलॉजी क्यों ली मैंने, मेरा एक बड़ा मोटिव था कि आई वांट पीपल टू बी हैप्पी इन लाइफ. अब देखो यार, क्योंकि मैं सबके पेन्स तो नहीं कम कर सकती, आई एम नॉट गॉड. द ओनली थिंग इज कि एटलीस्ट आई वांट पीपल टू बी अवेयर एंड टू बी ओके विद देयर ओन थिंग्स. इट इज ओके नॉट टू बी ओके, they should accept. So if given a chance, so I want people to vent out their own feelings, to vent out their own emotions, regulate their emotions better. So I want कि people should be happy no matter what. कि life में problems हमेशा रहेंगी, ऐसा कोई दिन नहीं होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके पास problem ना हो. So be acceptful, be happy about it, just do whatever you want to do. Yeah. Correct. So that would be the superpower to make everyone happy. Yeah. आज का दिन आपका, आज जो मर्जी है वो करो. That's great. Okay. So I think my last question, your last segment would be, we talked a lot about mental health, but let's talk a little bit about how, like, some of the few tips on self-care, sort of like a concluding message Alright. that no matter like whether you are suffering professionally, personally, these tips you can just apply and you can wake up happier. Okay. So practice self-care first. Top most priority is practice self-care. Keep yourself on priority, on the top. हम क्या करते हैं ना, हम जो लिस्ट बनाते हैं उस लिस्ट में अपना नाम गायब कर देते हैं, या तो सबसे नीचे होगा या होगा नहीं. तो हम उस लिस्ट में करते हैं सारे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके इंपॉर्टेंट काम है, वो सारी चीज़ों को सबसे ऊपर रख देता है, जो नहीं करना चाहिए. जो सबसे पहले आपको करना है ना, तो अपने आप को ऊपर रखना है, अपनी खुशी को इम्पोर्टेंट रखना है, टॉप पे रखना है. सो इफ़ यू आर पैम्परिंग योर सेल्फ, इफ़ यू आर लविंग योर सेल्फ, that is the best thing. And to attain peace, of course, as I said in previous questions, कि if you are happy you can make others happy. but हम क्या करते हैं ना, हम खुद तो खुश है नहीं, बट दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं. तो वो खुश करने की जो एफिशिएंसी आप कर रहे हो, जो डाल रहे हो, उसका प्रोबेबिलिटी कितनी आए है, उसकी तो मिनिमलिस्टिक है ना, क्योंकि आप खुश नहीं हो, सिर्फ उनको प्लीज करने के लिए कर रहे हो ताकि वो बुरा ना मान जाए, आपकी सोशल इमेज पे इम्पैक्ट ना आ जाए. सो यू आर जस्ट डूइंग थिंग्स. But if you are maintaining boundaries, if you are keeping yourself on top, that is the best thing ना, क्योंकि आप तो खुश हो. और तब आप अपनी boundaries maintain करके, अगर someone is saying something, can you do that? Yeah, of course. And if at all they are saying you're not okay with it, you can say no, yeah, I cannot do that. I'm busy, or this is something I cannot take that responsibility. So एक और चीज इसी से मेरे दिमाग में आ रही कि it's okay to not being liked by everyone. Yes, of course. You don't have to feel the pressure कि मेरे को सब पसंद करे. क्यों करें? क्यों करें? Exactly. The point is, कि you're not coffee, you're not tea. In fact, tea, coffee में भी there are many flavors. लोगों को ये पसंद है, ये पसंद है. आप कितना करोगे? Correct. So it is okay if you're not being liked by many of them. आपकी लाइफ में अगर एक भी इंसान भी है ना, अगर आपको पसंद कर रहा है, वही काफी है. एंड उससे भी पहले अगर आप अपने आप को पसंद कर रहे हो, अगर सब के सब भी आपको पसंद कर रहे हो, अगर आप अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हो, तो भी प्रॉब्लम है. तो इट इज़ ओके, पहले तो आप अपने आप को पसंद करो, अपनी गलतियों को माफ़ करो. बेसिकली आप पसंद क्यों नहीं करते हो अपने आप को, अपने आप से प्रॉब्लम क्यों होती है आपको? क्योंकि आप अपनी गलतियों को माफ़ नहीं कर पाते हो. अपने आप से टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड फेलियर टू डू सो
creates an impact. And I feel बहुत बार you like आप बस सबके हिसाब से चलते रहते हो. हाँ, अंदर ही अंदर you want to like do something else या be something else, but आप सबके हिसाब से चलते रहते हो, and that makes you really unhappy from within. right, right. So like not being authentic, like you have to be very authentic, even if it doesn't go well with people. See, that is what I said. Maintain boundaries. Yeah. Healthy boundaries are something which is important with everyone, not only with adults, it is with children too. अब जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों को भी कि नहीं नहीं बेटा तुम्हें तो करना पड़ेगा, and the child says no, you should respect that ना. आप बच्चे को आप जबरदस्ती करा रहे हो क्योंकि लोगों को चाहिए कि अरे नहीं आपका बच्चा ऐसे करे, बट उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, क्यों करवाना आपको? तो रिस्पेक्ट दैट बाउंड्रीज नो. इफ यू मेंटेन दोज बाउंड्रीज, आपको जरूरत ही नहीं है दूसरों को प्लीज करने की. आपने अपनी बात प्यार से बता दी कि आई एम नॉट ओके, आई डोंट वांट टू डू इट, यू नो, दिस इज समथिंग बियॉन्ड माय थिंग. सो मैं अननेसेसरी अपनी लाइफ में और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए मुझे. सो बी ओके विद दैट, बी वोकल अबाउट इट कि यू आर नॉट ओके. पीपल आर जनरली फियर टू से नो. यू नो, इतनी इजीली नो नहीं बोला जाता कि अरे यार क्या हो जाएगा, ऐसा हो लोग जाएगा. क्या सोचेंगे? हाँ हाँ हाँ. सो इट इज ओके. लोग सोचेंगे तो सोचेंगे, पहले भी सोच ही रहे थे ना. सोचने दो. हाँ. राइट. Correct. Okay. I think on that note, we can end today's podcast. We'll see you again with some other topics. On Yeah, mental yeah. health. Sure. It was really nice having you. I hope you had fun. अरे यार सीरियसली सम क्वेश्चंस तो मैं तो ये तो सोच रही थी, ये एनिमल वाला आई विल जस्ट थिंक एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन नेक्स्ट सीजन. Till then, we'll do with the bird. Yeah, just do that with the word. It was a nice session. Thank you so much for having me here. It is a great feeling. Thank you. Thank you.